السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ومن اهتدى بهداه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بلا شبہ وہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے ارد گرد کے علاقے کو بابرکت علاقہ کہا ہے، بابرکت سرزمین کہا ہے، اور بابرکت سرزمین صرف مسجد اقصی یا بیت المقدس ہی نہیں ہے، بلکہ پورا شام۔ اور جب احادیث میں یا سیرت کی کتابوں میں یا اسلامی تاریخ میں شام کا لفظ آئے تو اس سے مراد موجودہ شام، جس کو سیریا کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ موجودہ سیریا کے ساتھ ساتھ جارڈن، اردن، لبنان، فلسطین اور مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل، یہ پانچوں ملک شام ہیں۔ اسلامی شام کا یہ سب حصہ ہے، اور جو فضیلت قرآن میں یا حدیث میں آئی ہے وہ پورے شام کی ہے۔ ہاں، اس کا مرکز ضرور مسجد اقصی و بیت المقدس ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی شام ہے جو انبیاء کا مرکز، ان کی دعوت و تبلیغ کا مرکز، ان کا مسکن، ان کا مدفن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ایک کڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کو عراق سے جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت کر کے شام گئے، آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی گئے، بلکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اور لوط کو دونوں کو نجات دے کر کے ایسی سرزمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سب کی دعوت و تبلیغ کا مرکز شام رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے تو یوسف علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ صرف جو ہے شام اس میں چھوٹا ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے لگے سمندر کراس کر کے تو آپ کا ہی مقصد یہ تھا کہ ہم
ایلیا میں शाम में दाखिल हो जाए। इसी मकसद के तहत जब बनो इसराइल से ये कहा कि हमको जिहाद करके वहां दाखिल होना पड़ेगा, तो बनो इसराइल ने इनकार कर दिया और इस इनकार के नतीजे में 40 साल तक बनो इसराइल को मैदान तीह में सरगर्दा फिरना पड़ा। यहां तक कि हजरत मूसा की वफात हो गई और वफात के वक्त भी हजरत मूसा की यही ख्वाहिश थी कि मुझे शाम किसी तरह से बैतुल मुक़द्दस नजर आ जाए। इनांचे सही बुखारी की वो मशहूर रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत मलकुल मौत को हजरत मूसा की रूह निकालने के लिए भेजा, उसके अल्फाज में फजाअहु फसदकहु, जब क्योंकि अंबिया का मामला ये होता है कि मौत का फरिश्ता जब किसी नबी की रूह निकालने के लिए आता है तो इजाजत तलब करता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी और अल्लाह के रसूल ने कहा आप मुझे रफ़्क़े आला चाहिए, तब आपकी रूह पहुंची। ये तमाम अंबिया के साथ जब हजरत मूसा के साथ फरिश्ते मौत आए तो हजरत मूसा ने उनको एक चांटा रद्द कर दिया जिससे उनकी आंख चली गई। वापस अल्लाह के पास गए, अल्लाह ताला ने उनकी गिराई वापस लौटाई। तो मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से कहा कि या रब्बी अरसलतनी इला अब्दी ला युरीदुल मौत, कैसे बंदे के पास आपने भेज दिया है जो मरना ही नहीं चाहता है। अल्लाह ताला ने कहा जाओ मूसा से कहो कि वो किसी बैल की पुष्ट पर अपना हाथ रखे, जितने बार उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल उनकी जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। मलकुल मौत आए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फिर हजरत मूसा ने पूछा या रब्बी मां, परवरदिगार उसके पास क्या? कहा तुम्मल मौत, मौत तो आनी ही है, फिर मरना है। तो कहा फरआन, जब मौत आनी ही है तो फिर अभी आ जाए, मैं मौत कबूल करता हूँ। वसअल अल्लाह अन युदनियाहु इलल अर्दिल मुक़द्दसति बिरमयति हजरी, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश अल्लाह से ये राहिल थी कि अल्लाह ताला मरने से पहले मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दे, इतना करीब कर दे इतना पत्थर आने की दूरी होती है। तो ये हजरत मूसा के दिल में एक कसक थी कि किसी तरह से मैं अर्ज़े शाम पहुंच जाऊं, अर्ज़े फ़लस्तीन पहुंच जाऊं, बैतुल मुक़द्दस पहुंच जाऊं, ये ख्वाहिश थी। हजरत मूसा के बाद मूसा के नून ने उसको फतेह किया। फिर आप देखेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम का मरकज शाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर करी, उन्होंने कहा शाम है। उसके बाद आप देखेंगे याहया, ज़करिया, इलियास, अय्यूब, ये सब शाम में थे। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शाम में थे, फ़लस्तीन ही में थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये सब अंबिया का मरकज शाम भी रहा है। तो शाम अंबिया का मस्कन है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत लेने से पहले बचपन में एक सफर शाम तक किया अपने चचा के साथ, जिसमें बुहैरा राहिब का वाक़या पेश आया। दूसरा सफर आपने अपनी बीवी का सामान तिजारत लेकर के हजरत समीरा का किया। ये दो सफर आपने नबूवत मिलने से पहले किए और नबूवत मिलने के बाद ये सफर है जो सफर इसरा कहलाता है। सफर इसरा और मेराज दो हिस्से हैं। इसरा का लफ्ज़ी माना होता है रातों रात चलना। तो मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक का जो सफर है ये सफर इसरा है और यहाँ पर उसी का जिक्र है। और बैतुल मुक़द्दस से जो सिदरतुल मुंतहा तक का सफर है वो मेराज है। मेराज मतलब सीढ़ी होती है चढ़ने का आला, तो वो ऊपर जाने का जो सफर है वो बैतुल मुक़द्दस से हुआ है। तो ये सफर इसरा की पहली मंजिल है क्या? मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा का मतलब होता है, अक़सा मतलब होता है बईद तरीन, सबसे दूर। तीनों मुक़द्दस मसाजिद में क्योंकि मस्जिद अक़सा सबसे दूर है इसलिए इसको मस्जिद अक़सा कहा गया। मक्का और मदीना की दूरी के निस्बत मक्का से या मदीना से बैतुल मुक़द्दस की दूरी ज्यादा है इसलिए उसको मस्जिद अक़सा कहा। और मस्जिद अक़सा भी नाम पूरे तरह की नज़ूल के बाद पड़ा है, वरना पहले इसको अल-कुद्स, अल-मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस वगैरह कहा जाता है। मस्जिद अक़सा नहीं कहा जाता। मस्जिद अक़सा नाम सूरत के नज़ूल के बाद पड़ा और इसी को इब्रानी में यरूशलेम कहते हैं। चाहे वो यरूशलेम हो इब्रानी का या उर्दू का जो है या अरबी का बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दिस या कुद्स हो, तीनों आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के यहाँ बड़ा मुहतरम।
यहूदियों के यहाँ भी, ईसाइयों के यहाँ भी और मुसलमानों के यहाँ, तीनों के यहाँ कुदुस की, बैतुल मुक़द्दस की, यरूशलेम की बड़ी अहमियत है। मजहबी नाहिए से इसकी बड़ी अहमियत है। खुद इस्लाम का मामला ये है कि ये जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर इसरा की पहली मंजिल है, वही ये वो जगह है जहाँ अंबिया का इज्तिमा हुआ, अल्लाह के रसूल ने यही अंबिया की इमामत कराई। यही वो जगह है जो दुनिया की दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद जो दुनिया में बनाई गई वो खाने काबा है और दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। और ये मुसलमानों का पहला कुबला भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीना बैतुल मुक़द्दस की तरफ आपने रुक करके नमाज पढ़ी है। तो इसकी बड़ी अहमियत है। दुनिया की सिर्फ 3 मस्जिदें हैं जहां ज़ियारत की नियत से सफर करके जाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुशक्कु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद मस्जिद हाज़ा व मस्जिद हराम व मस्जिद अक़सा। 3 मस्जिदों का सफर ज़ियारत करने के लिए सफर किया जा सकता है। वैसे आदमी सफर करे, लेकिन नेकी के लिए सिर्फ 3 मस्जिदों पर जा सकता है। कोई जामा मस्जिद नेकी की नियत से जाए तो वो गुनाह का काम करेगा। तो मस्जिदें सिर्फ 3 ही हैं जहां पर वो जा सकता है ज़ियारत के लिए सफर तक की नियत से कि हमको सवाब मिलेगा। उसमें मस्जिद नबवी है, मस्जिद हराम है और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफर इसरा की मंजिल है। और ये पूरा इलाका ही बड़ा ही बाबरकत है। सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि जो 5 ममालिक थे, पूरे के पूरे 5 ममालिक का इलाका जो सीरत में या हदीस में शाम कहलाता है। आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही शाम की फुतूहात का आगाज किया था। पहले आपने शुरू कर दी थी, दूसरे रुका हुई। आपकी जिंदगी का आखिरी लश्कर जो आपने भेजने के लिए तैयार किया था, जिसको जैसे उसामा कहा जाता है, उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में एक लश्कर आपने तैयार किया था। वो लश्कर अभी मदीना के बाउंड्री से बाहर ही निकला था कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो गई। वो लश्कर नहीं गया, लेकिन हज़रत उमर खलीफा बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया उन्होंने जैसे उसामा को रवाना किया। ये शाम की फुतूहात में गया था और इसी लश्कर से शाम की फुतूहात की शुरुआत हुई है। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमांडिंग में एक लंबा सिलसिला है जो फुतूहात का शुरू होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो कुछ पेशगोइयां की थी उसमें से एक पेशगोई इसी बैतुल मुक़द्दस की पढ़ी थी। कल मैंने वो हदीस और मानी की पढ़ी थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी मौत से पहले क़यामत से पहले 6 चीजें जरूर वाक़ई होगी। आपने कहा मौती हुक्मा फतहु बैतुल मक़दिस, मेरी मौत और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह। तो बैतुल मुक़द्दस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिर्फ 5 या 7 साल बाद मुरज्जिम के इख्तिलाफ के साथ, किसी ने 15 हिजरी कहा, किसी ने 17 हिजरी ने कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इसकी फतह हुई। और फतह भी कैसे हुई? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, जिनको हज़रत खालिद को हरा करके हज़रत उमर ने कमांडिंग सौंपी थी। इनकी कमांडिंग में 5000 का कुछ लश्कर, आजकल जंगें होती है देखो लाखों लाख फौज होती है, सिर्फ 5000 का लश्कर लेकर के हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह मदीना से निकले। तो मदीना कहाँ और कहाँ ईलिया? उस जमाने में फलस्तीन को ईलिया कहा जाता था, इसलिए तारीख वगैरह पढ़े अगर ईलिया का नाम आया तो समझिए कि वो फलस्तीन है। ईलिया का मतलब फलस्तीन। तो ईलिया को फतेह करने के लिए जब भेजा था हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह उर्दू पढ़ते और उर्दू से उन्होंने अपना एक नामावर भेजा। उर्दू पढ़ करके उन्होंने एक खत लिखा और खत में ये लिखा कि 3 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। सबसे पहली चीज हम ये चाहेंगे तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारे भाई हो जाओ। जो मेरी जिम्मेदारी वो तुम्हारी जिम्मेदारी, जो मेरा हक होता है वो तुम्हारा, हम और आप बराबर हो जाएंगे इस्लाम कबूल करने के बाद। दूसरी चीज, अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करते हो तो टैक्स दो। टैक्स का फायदा ये होगा हम तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू के मुहाफिज होंगे, सारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। तीसरा ऑप्शन ये रखा कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ईलिया वालों ने लड़ने का इंतखाब किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने 5000 के लश्कर से ईलिया का मुकाबला किया।
ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहा। 40 दिन ही में इंडिया वाले बर्फा हो गई और उन्होंने सुलह के लिए रजामंदी जाहिर की, लेकिन शर्त ये लगाई कि खुद खलीफा वक्त आकर के सुलहनामा पर दस्तखत करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से मशवरा करने के बाद मदीना से मक्का तक का सफर, फलस्तीन तक का सफर सिर्फ इसलिए किया कि वो सुलह हो जाए। असल में इस्लाम जंग नहीं चाहता, इस्लाम सुलह चाहता। उसके लिए हजरत उमर मदीना से आए और इसी सफर में बहुत सारी सफर की वाक़ियात है, बल्कि हजरत उमर की सीरत का एक नुमाया पहलू सफर शाम है, कई खुतबात है और कई मकाम पर जो है। उसमें से जब इंडिया के करीब पहुंचे और आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्तकबाल किया। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, सही है, जिसको अल्लामा अल्बानी ने सहीहा में जिक्र किया है कि हजरत जब इंडिया के करीब पहुंचे तो दरिया को क्रॉस करने का, दरिया में घाट जहां पानी कम होता है और आदमी उतर कर उस तरफ जा सकता है। हजरत उमर ने क्या किया, ऊँटनी की लगाम पकड़ी, अपना मोटा उठाकर कंधे पर डाला और लगाम हाथ से पकड़ करके खुद दरिया क्रॉस करने लगे। हजरत उधर इंडिया के सरबराह, उसकी फौज, उसके उधरा सब इस्तेमाल के लिए मौजूद है और एक खलीफे वक्त खुद अपना मोटा हाथ में लिए हुए लगाम पकड़े हुए और मार्चे चढ़ाए हुए दरिया पार करते हुए आ रहा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि ये जो है लोग आपको देख करके क्या सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा अब क्या अफसोस की बात है, वो कहना तुम्हारे अलावा किसी ने ये बात कही होती, कुन्ना अदल्ल कौमिन फअअज्जलल्लाहु बिल इस्लामी महमानतुहु इद्दा बिगैर इस्लामी अदल्लल्लाह। कहा कि तुमको पता है हजरत जलील कौम के बकरियां चराते थे, ऊंट की गल्लाबानी करते थे, हमको इज्जत इससे नहीं मिली है कि मोजा हम कंधे पर रख लेंगे, घोड़े की लगाम पकड़ लेंगे तो इज्जत हमारी मिल जाएगी। हमको इज्जत इस्लाम में दी है। अगर हम इन चीजों से इज्जत तलाश करेंगे, गैर इस्लाम से हम जब इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमको जरूर कर देगा। ये तारीखी जुमला है हजरत उमर का कि इज्जत हमें इस्लाम ही से मिलेगी, इस्लाम में चल करके ही मिलेगी। इस्लाम से हट करके हम इज्जत तलाश करें, हम सोचे कि दाढ़ी नहीं रखेंगे हम मौजूद हो जाएंगे, टोपी नहीं लगाएंगे हम मौजूद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इस्लाम छोड़ करके हमको इज्जत मिलने वाली नहीं है। इस तरह से गए इंडिया वालों ने तेरे की चाबी आपके हाथ पर रखी, मुसालहा होगी और ये मुल्क फतेह हो गया। ये आखिरी हिस्सा था शाम का जो फतेह हुआ। इस तरह से सन 17 हिजरी में पूरा शाम यानी उर्दून, लबनान, फलस्तीन, इसराइल और मौजूदा शाम, सीरिया, सब पूरा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। लेकिन दुनिया के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहे, हालात बदले। सलीबियों ने कब्जा किया, फिर 450 साल बाद इसके हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको वापस किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंग है, जब वो कहा करते थे इनकी उम्र और जिंदगी का बेशतर हिस्सा घोड़ों की पुष्ट पर गुजरा। वो कहते थे कि मुझे खुशी ये चीजें कैसे राहत करती है जब तक कि फलस्तीन या बैतुल मुक़द्दस से नहीं करते थे। तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में जाकर के अल्लाह ताला ने ये फतेह अता की और उस वक्त से लेकर के 1260 हिजरी तक ये मुसलमानों के पास रहा। 1260 हिजरी में ये जो तातारियों का दौर है, तातारियों ने जब बगदाद को फतेह किया तो बगदाद के बाद उनका असली निशाना शाम था। शाम ही में जाकर के पहली बार तातारियों को अगर कहीं शिकस्त हुई है तो वो फलस्तीन में ऐने जालूद के मकाम पर शाम ही में जाकर हुई। ये पहली शिकस्त है जो तातारियों को हुई है और तातारियों को भी वहां से शिकस्त खा करके भागना पड़ा और उसके बाद जो है वहीं से तातारियों की शिकस्त होना शुरू हुई है। फिर उसके बाद ममालिक मिस्र का कब्जा रहा, उस्मानी खुलफा का कब्जा रहा और उसके बाद ये जब जंग रबीउल अव्वल 1914 में शुरुआत हुई, उस वक्त जो है फ्रांस और बरतानिया ने दो महाज जब बनाए और जर्मनी का महाज एक तरफ हुआ तो उसमें मुसलमानों को इस तरह से तकसीम किया गया
कि उस्मानी खुलफा जर्मनी के साथ थे और अरब खुलफा हुमरान वगैरह मक्का हुए या मिस्र के हुए, ये लोग जो है बरतानिया के साथ दो ग्रुप होकर के तकसीम हो गए और फिर फ्रांस और बरतानिया ने मिल करके इसको तकसीम किया, तब ये 5 ग्रुप बने। उससे पहले पूरा एक ही था। ये फ्रांस और बरतानिया की तकसीम की वजह से ये 5 ग्रुप वजूद में आए और फिर जो है हुआ क्या कि लीग ऑफ नेशंस, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, उसने सन 1943 में फलस्तीन और इसराइल दोनों जो वक्त थे पूरा इलाका जो है इसके कब्जे में ले लिया, बरतानिया के कब्जे में। उन्होंने तौर पर उनकी अपनी हुकूमत आई और फिर बरतानिया ने बिल पास करके कह दिया कि जो है नहीं, हम जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यहूदियों को दे दिया 63%, 67% और मुसलमानों को 33% हिस्सा दिया। हालांकि आबादी के एतबार से मुसलमान 55% थे और यहूदी 45% थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से तकसीम कर दी और इसी तकसीम के नतीजे में 1948 से जब इसकी जो शुरुआत हुई, इस तकसीम पर भी इसराइली राजी नहीं हुए। 1948 में मुआहदा हुआ और मुआहदे में जो है मुसलमान चले गए। 1966 में पूरे अरब ने मिलकर के इसराइल से जंग की, लेकिन इसराइल के हाथ पर बरतानिया और अमेरिका किस तरह रखे हुए थे। फिर एक बार शिकस्त हुई और तेहराए सीना और गोलान की पहाड़ियां चली गई। वो तो उर्दू में जाकर के मौजूदा हिस्सा बचा हुआ है, वो उर्दू में बचा दिया था, मतलब वो निकला जाता। तो इस तरह से मुस्तकिल उसको एक निर्णय में लेकर के रखा है। लेकिन याद रखें, ये वो इलाका है जिसके बारे में अहादीस में बड़ी फजीलतें आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बाकायदा दुआएं की। यहाँ में फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमीना। ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत डाल दे, अल्लाह हमारे यमन में बरकत डाल दे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वफी नसीना, हमारे मस्जिद इराक के लिए भी दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फिर कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमीना। फिर सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल मस्जिद आपके बारे में भी कह दीजिए अल्लाह बरकत डाल दे। तीसरी बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा होना तो जलाली वल मुदन व बिहा यकुल शैतान। मस्जिद इराक के बारे में मैं ये दुआ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां जलजले और फितने रुनुमा होंगे और शैतान वहीं से सर खाएगा, इसलिए उसके बारे में आप ये दुआ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को ईमान की जमीन कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के वक्त में शाम में पनाह लेने के लिए कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कहा है कि शाम वो सरजमीन है जहां फरिश्ते अपना पर बिछाए रहते हैं, जहां फरिश्ते अपना पर बिछाए रहते हैं। एक हदीस में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सयसील अमरु अन तकूनु जुनूदुन मुजन्नदा जुनूदुन बिशाम वजुदुन बिल यमन वजुदुन बिल इराक, कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा मुसलमानों कि तुम कई ग्रुप में बनकर के लड़ रहे होगे, जंगें तुम्हारे ऊपर कई से मुसल्लत करी जाएंगी। तुम्हारा एक गिरोह यमन में जंग कर रहा होगा, दूसरा गिरोह शाम में जंग कर रहा होगा और तीसरा गिरोह इराक में जंग कर रहा होगा। सहाबा ने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए मुंतखब कर दीजिए, चुन लेना हम किस ग्रुप में जाएं, अगर ऐसे हालात हो जाए हम किस पर कहां चले जाए। आपने कहा अलग शाम, उन शाम को लाजिम पकड़ना, तुम अगर ऐसे हालात हो तो शाम को चले जाना। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया है कि फितनों के जब हालात होंगे और आखिरी वक्त में जो फितने की सरजमीन बनेगी यही इलाका होगा, आखिरी वक्त में भी यही इलाका आबाद बनेगा, यहीं पर सारी जगह होगी। और ये भी यकीन रखें कि मुसलमानों को एक न एक दिन फिर ये इलाका वापस ही मिलेगा, ये इलाका एक न एक दिन ये इलाका वापस ही मिलेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। बस हालात दुनिया के बदलते रहते हैं, कभी वो कभी हम। ये असल में इस जमीन का मसला है ही नहीं, ये सियासी मसला है, ये मजहबी मसला है, ये मुकद्दसात का लोगों की मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में कहा कि यखरुज दज्जाल के बारे में अगर दज्जाल निकला और मैं मौजूद रहा तो मैं तुम्हारा दिफा उस पे करूंगा, मैं तुम्हारा दिफा उस पे करूंगा। लेकिन अगर मैं मौजूद नहीं रहा और दज्जाल निकला
تو تم میں سے ہر شخص جو ہے اپنا نکاح کرے گا، ہر شخص اپنا نکاح کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جو ہے دجال سے حفاظت کے لیے تمہیں کہا کہ خدائی آتی کرو، یہ تمہارے لیے جہاد کا اور پناہ کا کام کرے گی۔ اس موقع پر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب دجال نکلے گا تو پھر وہ کتنے دن رہے گا؟ آپ نے کہا 40 یوم، یوم کا سنتی و یوم کا شہری و یوم کا جمعتی و سائر ایامہ کا ایامکم۔ آپ نے کہا کہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب یہ پوچھا تو پھر صحابہ عام ہوتے پوچھتے، اللہ کا رسول اب کھائیں گے کیا، رہیں گے کیسے؟ صحابہ کا سوال بھی بڑا دل کو چھو لینے والا ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری جو دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ سال بھر والے دن میں بھی ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ان کو نماز کی فکر تھی، ہم کو کھانے کی فکر ہوگی، ان کو نماز کی فکر۔ سوال کیا آیا ان کے ذہن میں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، کہ سال بھر میں جب سال بھر کا دن ہوگا نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، پڑھنا، دن کا اندازہ کر لینا۔ ایسا نہیں کہ سال بھر کا جہاں دن ہو وہاں 7 عید ماہ سال بھر میں نہیں جائے گی، بلکہ آپ نے کہا پڑھنا، اس کا اندازہ کر لینا۔ اب تو گھڑیاں ہیں، جدید آلات ہیں، کہیں پر بھی رہیں، سال بھر سورج نہ ہی نکلے تو کیا ہے، ہم دن کا اندازہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ دن کا اندازہ کر لینا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَيَبْدِلُ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ کب ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ کہا امداد المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرقی فصیل پر جو سفید منارہ ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ دمشق کہاں ہے؟ موجودہ شام جو سیریا ہے وہاں دمشق ہے۔ دمشق ہی وہ شہر ہے جہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت سے پہلے 20 سال بحیثیت امیر شام حکومت کی، اور حضرت حسن سے مصالحت کے بعد 20 سال بحیثیت امیر المؤمنین کو دارالقطر بنایا تھا۔ 40 سال حضرت ابی معاویہ کا دور خلافت ہے، اس کا دارالقطر یہی دمشق ہے، اور دمشق ہی وہ شہر ہے جہاں پر حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال کر کے رکھا گیا، اور دمشق ہی جیل ہے جہاں پر امام البانی رحمہ اللہ کو بھی جیل میں رکھا گیا۔ تو دمشق جو ہے تاریخی شہر ہے، تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور دجال کو یہیں سے خدیرنا شروع کریں گے، اور کہاں پکڑیں گے جا کر کے لد جو موجودہ اسرائیل میں ہے اس کے دروازے اور گیٹ پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اور دجال کے پیچھے کون لوگ ہوں گے؟ یہودی۔ اس وقت مسلمانوں کا ساتھ درخت دے کے سوائے ایک درخت کا برکت نامی جو درخت ہے، یہ درخت جو ہے چھپائے گا، ورنہ باقی سارے لوگ کہیں گے کہ یا مسلم ہاں یہودی مخالفی ہے، مسلمان آؤ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا اس کو قبول کر دو۔ تو وہ زمانہ بھی آئے گا، لیکن یہ پورے قیامت کا زمانہ ہے۔ یاد رکھیں قیامت بہت زیادہ دور نہیں، دنیا کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں ان حالات میں بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ شام انبیاء کی سرزمین ہے، علماء کی سرزمین ہے۔ آپ دیکھیں گے شارح بخاری حافظ ابن حجر شام کے تھے، غزہ کے رہنے والے تھے۔ اسقلان جو ہے غزہ کے بغل میں جگہ ہے، وہ ابھی اسقلان شہر ہے، اسقلان کے رہنے والے تھے۔ امام نووی جو صحیح مسلم کے شاعر ہیں یہ شام کے رہنے والے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ یہ شام کے رہنے والے تھے۔ امام ابن قیم یہ شام کے رہنے والے تھے۔ امام ابو زرعہ یہ شام کے رہنے والے تھے۔ امام حاکم جن کی تاریخ دمشق ہے وہ شام کے رہنے والے تھے۔ یہاں تک کہ علامہ البانی محمدی شام کے رہنے والے تھے۔ یہ علماء اور انبیاء کی سرزمین ہے، بڑی برکتوں والی سرزمین ہے، اور اس سرزمین سے انسان کی قلبی محبت ہونی چاہیے جس طرح سے انسان کو مکہ اور مدینہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ نہ کر سکے آدمی تو کم سے کم دعا میں تھوڑا رکھنا چاہیے۔ اللہ وہاں کے حالات بہتر بنائے۔ شام سیریا کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں لیکن بہت بہتر نہیں ہے۔
اللہ بچائے کہ تینوں سے ایسا نہ ہو کہ میڈیا کی طرح حال ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ فزکس کی طرح حال ہو جائے کہ آپس میں سے لڑتے رہیں، اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہماری دعاؤں کے حقدار لوگ ہیں، چاہے وہ موجودہ فلسطین ہو، بیت المقدس ہو یا سوریا ہو، یہ سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور یہ سب ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ان کی مسائل اور پریشانیوں کو دور کر دے اور ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہی ہے، پوری مسلم امت کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ ہم سب کی طرف سے، کیونکہ وہ مہان پر کو لڑنا پڑ رہا ہے، ہم پیچھے نہیں ہیں کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ کتنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں کسی بابرکت علاقے شام کے بارے میں گفتگو کی ہے اور پھر دیگر مسائل کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خواہ مسلمان شام کا ہو، فلسطین کا ہو، برما کا ہو، ہندوستان کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو امن فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات کو بھی مسلمانوں کی بہتر بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔